Good morning, students. So let's start our today's class. So till now we study 7 theorems, and that states about how to prove a quadrilateral, a parallelogram, and the properties of a parallelogram. ठीक है? And next theorem is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. We already proved कि अगर sides अगर equal given थी तो we can prove that the quadrilateral is a parallelogram, और अगर parallel भी है तो भी हम बोल सकते हैं वो parallelogram है. ठीक है? So that these all theorems will be used in exercise 8.1. Now first question is the angles of a quadrilaterals are in ratio 3:5:9:13. Find all the angles of quadrilateral. Now whenever we are given angles in ratio, then consider angle first angle हमने यहाँ पे consider कर लिया will be in terms of x, so 3x. Second angle will be 5x. थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल विल बी 9x एंड फोर्थ एंगल विल बी 13x. ठीक है? नाउ गिवन दैट दीज आर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर्स. क्वाड्रिलेटर्स में एंगल्स कितने होते हैं? 4. एंड वेन एवर वी हैव 4 एंगल्स देन सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 360. ठीक है? सो क्या हो जाएगा हमारे पास? एस sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. So 3x plus 5x plus 9x plus 12x that is equals to 360. ठीक है? Now 3 plus 5 8 and 8 plus 9 17 and 8 plus यहाँ पे 13 था हमारे पास. ठीक है? So that will be the 30x that equals to 360. Now x will be 360 upon में 30 and that will be equals to 12. ठीक है? So x कितना आ गया हमारे पास? 12. अब हम एंगल्स निकालने थे यहाँ पे, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x था तो 3 multiply with 12 that will be 36 degree. Second angle equals to 5 multiply with 12 and that is equals to 60 degree. Third angle 9 multiply with 12 that is equals to 108 and fourth angle will be 13 multiply with 12. Now 12 3 is 36, 12 156 is the answer. So these are all 4 angles of a quadrilateral for which we are given ratio. Okay, so next question is if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. Now parallelogram है, that means AB is parallel to CD and BC is parallel to AD and sides are diagonal are also given, that means AC is equals to BD given है यहाँ पे. So AC is equals to BD is already given and we have to prove that ABCD is a rectangle. Rectangle के लिए क्या होता है हमारे पास? If in case we prove that the opposite sides are equal. Now parallelogram की opposite sides equal नहीं given है, सिर्फ diagonals equal given है. ठीक है? And we know that parallelogram की opposite sides क्या होती हैं? Parallel होती हैं. Now ABCD is a rectangle. और रेक्टेंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? इफ ईच एंगल विल बी 90 देन दैट विल बी अ रेक्टेंगल, बिकॉज पैरेललोग्राम की क्या होता है हमारे पास एंगल्स 90 डिग्री पे नहीं होते हैं. ठीक है? सो ABCD रेक्टेंगल प्रूव करना है. AC इक्वल्स टू BD गिवन है, सो वी कंसिडर द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD. यहाँ पे हमने क्या करा है? ABC और सेम बेस पे एक और ट्रायंगल लिए BAD. ठीक है? नाउ ऑलरेडी गिवन दैट AC किसके इक्वल है? AC विल बी इन दिस ट्रायंगल ABC में और वो इक्वल है हमारे पास BD के. ठीक है? सो गिवन है ये. और क्या है हमारे पास? AB क्या है? कॉमन है इन बोथ द साइड, बोथ द ट्रायंगल्स, सो कॉमन. एंड थर्ड विल बी
अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स हमें क्या बताएं, देखो साइड्स तो इक्वल हो गई है, अब हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, एंगल्स प्रूव करने कि वो 90 हो। पैरेललोग्राम की हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी हो रही है, ए बी के पैरेलल है सी डी, बट सी डी विल नॉट बी इन दिस ट्राइंगल। सो हेयर बी सी एंड ए डी आर इक्वल। सो बी सी इक्वल किसके है, ए डी के। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, that will be a symbol for parallelogram is equal. So क्या हो गया अब हमारे पास, these two triangles will be congruent to each other, BAD by SSS rule, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल्स क्या है, अब हमारे इनमें से दो एंगल्स को प्रूफ करना है, तो वी कंसिडर, तो यहाँ पे हमने ए बी सी ट्राइंगल में बी एंगल ले लिया और बी ए डी में हमने ये एंगल ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, ए बी सी इक्वल हो गया हमारे पास एंगल बी ए डी के इक्वल बाय सी पी सी टी, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रूव दैट बोथ ऑफ दीज एंगल विल बी, ऑल ऑफ दीज एंगल विल बी एट 90 डिग्री। नाउ वी नो, देखो अब यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइंस है और अगर सेम साइड पे दो एंगल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180। बोथ ऑफ दीज एंगल विल बी को इंटीरियर बिकॉज बी एंड ए, बोथ ऑफ दीज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ट्रांसवर्सल लाइन। एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए बी। सो ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी दैट इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। सो अब दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है आपस में, तो हम इनमें से किसी भी एंगल को रिप्लेस करके दूसरे एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 180। सो ए बी सी कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ हो गया, तो वो कितना आ जाएगा 90। अगर ए बी सी 90 है तो बी ए डी भी क्या होगा हमारे पास 90। एंड सिमिलरली इन केस अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे बी सी डी ट्राइंगल एंड सी डी ए ट्राइंगल, तो वहां से हमारे पास क्या हो जाता है, दीज टू एंगल्स विल बी प्रूव टू बी 90, ठीक है। सो यहाँ पे चारों एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। Now next question is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other. Now we are given that diagonals of a quadrilateral, not a particular shape of a quadrilateral, सिर्फ quadrilateral है यहाँ पे, और diagonals क्या है, bisect करते हैं each other at right angle, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कहाँ क्या है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी फॉर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, दैट विल बी अ रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है हमारे पास, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एंड ईच साइड विल बी इक्वल। तो ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। सो फर्स्टली वी आर गिवन दैट ओ बी किसके इक्वल है हमारे पास, ओ डी के, एंड ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, बिकॉज डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट each other, ठीक है। now we will prove that sides are equal, so consider the triangles in triangle AOB, AOB consider करते हैं हम, and BOC and triangle OBC, ठीक है। now firstly क्या गिवन है हमारे पास, OA किसके इक्वल गिवन है, OC के गिवन, पहले हमने यहाँ पे वो कर लिया है, ठीक है। एंगल क्या है यहाँ पे 90, सो ए ओ बी एंगल किसके इक्वल है, एंगल ओ बी बी ओ सी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री हो गया हमारे पास यहाँ पे। एंड ओ बी क्या है, दोनों में कॉमन, ए ओ बी में भी ओ बी आता है एंड ओ बी सी में भी हमारे पास क्या है ओ बी। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन इन बोथ दीज ट्राइंगल, सो बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल विल बी, सो ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle OBC by SAS rule या right hand side congruency rule से भी बोल सकते हैं ना। अगर congruent है तो इसके corresponding part क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB यहाँ पे साइड है और BC इस ट्रायंगल की साइड है, सो AB किसके इक्वल हो गया, BC, एंड सिमिलरली वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC। और अगर हम बाकी ट्रायंगल कंसिडर करते तो वहां से भी हमारे पास हो जाता, तो CD इज इक्वल टू AD
Hence, ABCD is a rhombus. So that is all for today. Thank you. Have a nice day.